Hello students, RPS School. Welcome students, RPS School. Welcome to you all for the online classes. And just I use my mask today also. I always give you message about COVID-19, which is very essential for your protections, for your security. Health is wealth. If you are well, then go absorb each and everything. If you are not, there is nothing else. As our Prime Minister also said, "Jaan hai to jahan hai." So that's why we have to maintain social distances, mask also, and we have to maintain also the lockdown. Okay. During the lockdown periods, what are the precautions should be taken? That is already known to you. So, just I remind you in every classes, that's why. Okay? I'm just going to remove this mask. Okay. Now, today, Standard 7 class, I'm just going to discuss about English grammar. English grammar, that will be discussed today, and this which topic I am going to explain today about the tense. You see, before starting this chapter, before starting this grammatical chapters, I would like to say, before starting, we should have to be very familiar with the importance of this one. You see, tense in CBSE curriculum, the grammar has not been assigned a very important things here. But you see, क्या अगर हम चाय पीते हैं और उसमें चीनी ना हो तो क्या हमें उसका स्वाद आएगा? नहीं आएगा. The similar way in English also. You are going through the literature, no doubt. You are writing again and again, and so many things you are going to be written, whatever the literature portions, your paragraphs, you see the letter writing, you see applications, whatever it is written, all are related with your grammar. And this grammar should not be overlooked. This should be considered a very important for all of you, and that should be absorbed well. So before starting, I am just telling you the importance of this tense. Tense is the backbone of your English. As I say, you see the backbone, जैसे हमारा backbone होता है, हम इस पीछे रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं backbone, और उस पर ही हमारा पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वहां पर मेंटेन है. Plus, every messages come from our spinal cord, that is backbone. So, just like tense is also just like the backbone of English. But maximum in today's scenario, I'm sorry to say that mostly institutions, whatever you see, whether the school and other institutions, they are not giving the importance of this one. But as I go through this one by one, you will see that, oh, how the importance of this one. How could I just access all the things so that my English should be very well. English है, English हम जानते हैं, अगर उसमें grammatical portion अगर हमारा सही होगा, उससे हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे. इवन जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, सर हमारा जो है आई एम नॉट गोइंग टू द अचीविंग स्कोरिंग अप टू द मार्क, आई एम फेल्यूर इन दिस फील्ड, हाउ कुड आई अचीव द मैक्सिमम मार्क्स. सो यू सी, whenever you go through your this one literature portion, whatever the English portion there are so many literature, whether it is literature or other portion, you are going to be defaulter there. In which sense? Grammatically errors there, and that's why you are not achieving
as your desired result. That's why I am telling you. So, first of all, we shall talk about the tense. You have gone through the earlier classes also. It may be or not be, but I am going to tell you so that you could be familiar in a better way, in a best way. अगर हम बेटर है तो बेस्ट होने में क्या है, अगर हम गुड है तो बेटर होने में क्या खराबी है. So we should come here according to this grammar. First of all, tense. तो टेंस जैसे ही बोलते तो हमारे दिमाग में एक बात आनी शुरू होती है कि टेंस क्या है, एक काल है. वो काल, एक तो काल होता है जैसे यमराज आ गए, जैसा अभी कोरोना वायरस में हो रहा है कि कहीं काल ना आ जाए. क्यों? कोविड-19 आ गया, कहीं हम उसके गिरफ्त में आ गए तो काल मेरे पास आ जाए, यानी यमराज आ जाएंगे और हमको फिर जाना पड़ेगा. Isn't it? लेकिन वैसी कोई बात नहीं है यहाँ पर. इन ग्रामेटिकल सेंस टेंस का मीन जो काल है ये यमराज से कंसर्निंग नहीं. इस काल को हम डिफाइन करेंगे तब हम समझेंगे आखिर व्हाट इज टेंस. टेंस आखिर है क्या. किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हम तो ये तो जान लें कि आखिर वो उसका मतलब क्या निकलता है. व्हाट डज इट मीन, सो दैट आई कुड गेट फेमिलियर वेल. So first of all, you will have to know what is tense. You see, tense is the time. You see, line word by word you absorb it, and no doubt you will get a maximum result. And I assure you, no doubt at all, isn't it? So what is tense? Tense is the time. Excuse me. Tense is the time described by a verb. You see the verb. Verb क्या है? क्रिया. हम जो कुछ भी करते हैं, दौड़ना, खेलना, कूदना, हमको किसी भी चीज को रखना नहीं, हमें समझना है. और समझ से हम अगर उसको समझेंगे और इस बात को एब्जॉर्ब करेंगे तो यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दिस. हमको समझना है. वर्ब हमको रटाया गया, शुरू से पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं. व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन. ये हमें डेफिनेशन समझने की जरूरत नहीं है. हमें उसका क्या कहता है, वो आखिर कहने के पीछे क्या उद्देश्य है, ये हम समझें. दैट्स द मेन इशू बिहाइंड इट, isn't it? So what I say you, tense is the time described by a verb. You see the verb? तो यहां पर टाइम हमने कहा है, टाइम एक समय से बोध होता है, यानी टेंस का रिलेशन एक समय के साथ हो रहा है. अब हम समय पर कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये हो गया प्रेजेंट हो गया. कल हमने आपका क्लास लिया था, वो पास्ट हो गया. और फिर कल हम आएंगे, यानी आज कितना डेट है, 1 मई. आज तो मई दिवस भी है, खैर तो 1 मई है. तो आज हम जो पढ़ा रहे हैं, आज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस. कल हम 2 मई में आएंगे क्लास लेने, वो होगा फ्यूचर टेंस. और जो हमने प्रीवियस क्लास लिया था, यानी 30 अप्रैल, that was the past tense. यानी हमारी एक्टिविटी से वो टेंस का रिलेशन हो रहा है. यानी जब हमारी एक्टिविटी से रिलेशन हो रहा है टेंस का, यानी टेंस को टाइम से हम रिलेट कर दिए. देखिए आप टेक्निकली कितना से जुड़ा हुआ है. ये टाइम को हमने टेंस से रिलेटेड कर दिया, इसलिए कि टेंस वर्सेस टाइम. टाइम पर ही हम टेंस को बता सकते हैं कि क्या है. ये समय का बोध कर रहा है. हमने कल क्या पढ़ाया था, आज पढ़ा रहे हैं, और कल क्या पढ़ाया. तो ये तीनों एक्टिविटी हमारा वर्ब के थ्रू हो रहा है. पढ़ाना, टू टीच, ये क्या है, एक्टिविटी है. तो एक्टिविटी क्या हो गया, वर्ब हो गया. दौड़ना, खेलना, कूदना, whatever you do the activity, that all comes under your verb, isn't it? So tense is the time described by a verb. So this time is related, tense is the time, and time is related to verb, as I told you earlier. Excuse me for a moment. Okay, shown by its grammatical form. Grammatical form means we shall just obey the rules of grammatical form.
Here if time is defined here, what is time? It is a concept. यह विचार है, क्या है? Which is related to our perceptions of reality. मतलब हमारे जो मत है, हम जो अपने सेंस ऑर्गन से ये समझते हैं कि आज हम ये काम कर रहे हैं, कल हम काम करेंगे और कल हमने किया था, ये हमारा परसेप्शन होता है, हमारी राय, हमारी सोच, हमारी ओपिनियन होती है, और वो परसेप्शन हमारे रियलिटी पर होती है। रियलिटी मीन्स क्या? अभी हम पढ़ा रहे हैं, ये रियलिटी है, कल हम पढ़ाए थे वो भी रियलिटी था, और कल हम पढ़ाने जाएंगे वो भी रियलिटी होगा। तो टाइम क्या हो गया? इट इज ए कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू आवर परसेप्शन ऑफ रियलिटी। राइट वन? यहां तक आपने समझ लिया होगा। यू विल राइट डाउन दिस वन इन योर notebook. I always say you that this should be written in your copy notebook, so that if you want to recall them, it will be very convenient for you to recall them. So now, अब हमने टेंस के बारे में जान लिया, व्हाट इज टेंस। अब टेंस के कैटेगरीज हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस है? टेंस, there are 3 types of tense as you know earlier. I'm just going to recall them again. Present tense, past tense और future tense. अब present tense, past tense और future tense सबका हम एक साथ अब हम अलग अलग इसको कैटेगराइज करेंगे और उसको वन बाय वन हम उससे फैमिलियर होंगे। Isn't it? Okay. Present tense. प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल को कहते हैं। इसके भी 4 कैटेगरी। और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, present perfect, present ठीक है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जस्ट करेक्टिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। These are the categories of present tense. But one thing is to be noted. How could you categorize this comes under the present tense? Very simple method I am going to tell you. When any word is followed by ta te pi, I'm just going to tell you in Hindi also. जिस वर्ड के लास्ट में ता ते पी जनरली होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के कैटेगरीज में आता है। जैसे प्रेजेंट टेंस का जैसे हो गया, हम आई एम जस्ट गिविंग यू वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल्स so that you could get familiar very easily.
जैसे हम बोलते हैं वह, हिंदी में वह जाता है, ठीक है, वह जाता है, राइट। हम क्या बोलते हैं, वह जाता है, तो हम बोलते हैं he goes, ठीक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये चार कैटेगरी जो प्रेजेंटेशन बताए थे, अब हम सिर्फ इसका बारे में बात करेंगे, इसको बाद में हम इसको later on this one and this one that we discuss later. So I am going to erase the rest one, it will be just going to define later on. Okay, now we are talking about present definite और simple present. वह जाता है, हम क्या बोलते हैं, he goes, और हम ये बोलते हैं वे जाते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, they go, नहीं बोलेंगे ना, they go, ठीक है। हम लोग जाते हैं, we go, है ना, हम लोग जाते हैं, we go। राम, श्याम जाता है, क्या बोलेंगे, श्याम गोज, नहीं बोलेंगे ना, श्याम गोज। अब श्याम जाता है, श्याम गोज, अगर श्याम और राम आ जाएंगे, राम और श्याम जाते हैं, क्या होगा, राम एंड श्याम गो, ठीक है। So what you see here, present indefinite is simple present, वह जाता है, he goes। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ पर वर्ब के लास्ट, इसमें क्या है, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट कौन है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब कर्ता, यानी जो करने वाला, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सब्जेक्ट कर्ता, और ये कर्ता जो है वो कौन है, वह है जो whatever the do work that is called subject। तो यहाँ कर्ता कौन हो गया, वह, और जाने यानी एक्टिविटी हो रही है, ये वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ वर्ब के लास्ट में हम एस लगा दिए, ठीक है। यहाँ पर एस या एस नहीं लगा, ये इसमें देख रहे हैं कि इसमें भी नहीं लगा, लेकिन इसमें लग गया एस वर्ब के लास्ट में, इसमें भी नहीं लगा। आखिर ये क्या राज है, व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। So let me tell you that इसको समझने के लिए हमको पर्सन में जाना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेट्स कम नाउ। Person, there are three kinds of person: singular number and plural number. Then space is not coming here, so let me get some. Singular and plural. Okay. Person, first person, second person and third person.
There are three kinds of persons here. Singular number I, singular number. Second you. Third he, she, it. और यहाँ पर हो जाएगा थर्ड में they. यानी इसको बनाने के पहले हमको ये भी समझना होगा कि पर्सन के बारे में हमारी जानकारी है या नहीं। ठीक है, अब इसको हम कोरिलेट कर रहे हैं किससे। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस वन। सो हमारा ग्रामर क्या कहता है, ग्रामरियंस ने क्या कहा, he just told us that in the first person I and we, second person you and you, singular and plural, third person he, she, it, and they, this one. Our just grammarians told that if I is there, जैसे हुआ जाता है मैं जाता हूं, अगर हम लिख देते हैं यहाँ मैं जाता हूं, क्या हो जाएगा, I go, मैं जाता हूं, I go, isn't it? ये हो गया। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि whenever I comes as a subject, इसमें एस या एस नहीं लगता है लास्ट में वर्ब का। जब बी आता है हम लोग जाते हैं बी, हम लोग जब सब्जेक्ट होता है उसमें यहाँ पर वर्ब के लास्ट में एस नहीं लगता है, बी गो। ठीक है, श्याम जाता है, एक सिंगुलर है तो उसमें एस लग गया। अगर प्लूरल हो गया राम एंड श्याम, देन एस verb is not followed by s or es. So just look here, यानी इन शॉर्टली अब हम क्या करेंगे, इसका टेक्निक क्या है। ये तो हम लिख दिया रूल्स, अब कहोगे सर जितना रूल्स दे दिए हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, कैसे हम एक बार में हम उसको रिकॉल कर लें। इसका एक टेक्निक है, हम बता रहे हैं। जस्ट लेट्स अस टू लुक दैट टेक्निक। In shortly, you can say I, you, we, they. ठीक है, एंड प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन जैसे हमने बताया, क्या बताया हमने, राम और श्याम जो भी हो प्लूरल सेंस में हो, वहां पर एस वर्ब के लास्ट में एस और ई एस नॉट अप्लाई, एस और ई एस हम नहीं लगाते, नॉट। ठीक है, अब इसमें एस या ई एस लगाते हैं in which it is applicable, he, she, it, and singular noun. These are followed by s or es. S or es applied. यहाँ पर एस और ई एस अप्लाई होता है, यानी हम इसको यूज कर सकते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दीज आर द इम्परेटिव, आई एम गोइंग टू टेलिंग द सिंपल सेंटेंस जैसे वो जाता है। ठीक है, अब एक्सक्यूज मी फॉर अ मोमेंट, for your convenience, I am just providing some questions. You will do at your home level, home assignment. You will practice and just get familiar how this is right or wrong. Okay, I am just giving
some questions related to this tense. हम इस टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देने जा रहे हैं, आप उसको बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर आपको याद करना होगा। यू विल हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर। व्हाट आर द स्ट्रक्चर टू बी रिटेन? जैसे मैथ में फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं ना, उसी तरह टेंस बनाने का भी एक फॉर्मूला होगा। तो ये वाला जो हमने सिंपल सेंटेंस बताया, इसका क्या फॉर्मूला है इसको बनाने के लिए? तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। फर्स्ट सब्जेक्ट इज अलाउड, सब्जेक्ट प्लस verb then object plus object then full stop। जैसे वह स्कूल जाता है, क्या बोलेंगे आप? What will you say? He goes to school। मैं खेलता हूं, I play। तुम दौड़ते हो, you run। हम लोग शतरंज खेलते हैं, we play chess। तो chess is called the object, subject। यानी जो लास्ट में आता है, जैसे हम क्या खेलते, जस्ट यू आस्क द क्वेश्चन व्हाट वी प्ले, chess। What do we play? Which type of play? The game. Which game we play now? Cricket, football, whatever it is you can say. That is comes under the category of object. So this one, you say वह परीक्षा की तैयारी करती है। वह परीक्षा की तैयारी करती है। क्या लिखेंगे? She prepares। एस लगाएंगे, वो लगाएंगे एस। हमने कहा था कि शी जहां होगा वहां पर एस और ये सप्लाई होगा, ये लगाएंगे। और इस आप जो भी बनाएंगे इसको आप ध्यान में रखेंगे तो कहीं आपको ग्रामेटिकली एरर नहीं होगा। He prepares for the examination। ठीक है, यह सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब हो गया। वर्ब भी कैसे देंगे हम इसको देखते हैं, और फिर उसको ऑब्जेक्ट रूप में। तो हमने क्या सीखा इसमें? हम सीखे कि अगर कोई भी वर्ड सेंटेंस दिया हो तो पहले हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि विच कैटेगरी इट बिलोंग्स टू। तो हम देखेंगे कि अगर वो प्रेजेंट में है, तातेती है, वर्ड के लास्ट में तातेती आता है, तैयारी करती है, आनंद। तो इस तरह का हम देखेंगे, उसको कैटेगराइज कर देंगे जो प्रेजेंट टेंस में। और एज सून एज यू जस्ट जज देम एंड जस्टिफाई देम, this comes under the category of present tense। You just going to apply all the rules of regulation concerning this। और रूल्स और रेगुलेशन क्या है कि हम उसको पर्सन में देख लेंगे कि कौन सा पर्सन, उसका सब्जेक्ट किस पर्सन में है, उस पर्सन के हिसाब से हम किसमें एस लगाएंगे और किसमें एस नहीं लगाएंगे, इस चीज को हम याद रखेंगे। और तब थर्ड में हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर को ध्यान देंगे, क्योंकि if you don't know the formula of any kind of thing, how could you just justify them? तो हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट पहले देंगे, फिर वर्ब देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, और इस तरह से हम उसको करेंगे। इट जस्ट डिमांड्स फॉर द प्रिपरेशन। तो इससे कंसर्निंग हम आपको कुछ सवाल क्वेश्चंस देंगे, आप घर पर इस लेवल को बना के देखिएगा। ठीक है, वर्षा होती है। कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप इसको बनाएंगे होम लेवल पे। ठीक है, वर्षा होती है, तुम घर
जाते हो। बच्चे वर्ग में हल्ला करते हैं। मेरे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मोहन और सोहन मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। You just practice at your home level. 5 questions provided, and rest questions you can also practice through your book. There is a translation book also, and concerning this one, you will only solve the present tense concerning questions there. आप घर पर इसी से concerning आप present tense and concerning आप अपने practice करेंगे घर पे, और उसको that will be sorted out whenever we just कंटिन्यू द क्लास। क्लास में आप लोग आएंगे और पर चेक किया जाएगा, हम लोग डिस्कस भी कर देंगे ऑनलाइन क्लासेस में, आपको बता देंगे, यहाँ पे आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यू कैन प्रैक्टिस एट योर होम। तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम आपका क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। इसमें जैसे हमने बताया था, ये सिंपल सेंटेंस है, इसके बाद इसका निगेटिव सेंटेंस है बताएंगे, जैसे वर्षा नहीं होती है। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएंगे, क्या वर्षा होती है, तो हर को कैटेगराइज कर देंगे और उस हिसाब से आगे के क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आई डू होप दैट यू हैव एंटरटेन्ड टुडे एंड यू विल absorb all the things whatever provided on the board, and I just expect you that you will get the benefit online classes at your home level due to COVID-19, and you will get the maximum result, no doubt. You will get it. So, till then, goodbye for this moment, and I will come back tomorrow. That is future tense, isn't it? According to tense. तो हम लोग पढ़ाएंगे फिर 2nd of May में, और 2nd of May हमारा क्या होगा, फ्यूचर टेंस होगा। ऑब्वियसली अभी हम टेंस की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल इफ आई जस्ट रिकॉल देम। ओके, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।